Welcome all friends. I am Hemant Agarwal, host and coordinator of webinar conducted by www.chshelpforum.com. This website is specifically relating to various issues that can be experienced in cooperative housing societies and will benefit both the managing committee and the housing society members. It has very simple language articles, draft of applications, our earlier webinar videos, and more shall be added as and when time permits. Please do visit and support our website. This lift laws reform committee is formed for the purposes of bringing in necessary legal reforms by filing writ petition or PIL in High Court. Everybody is invited to provide their experiences, expert opinion, technical guidance, which will form base for filing writ petition and PIL in High Court. Today's discussion topic is legalities कि एक्सीडेंट्स के दौरान पे क्या करना चाहिए. यूजर इंश्योरेंस, बिल्डिंग का इंश्योरेंस तो होता है, पर लिफ्ट में जो ट्रैवल कर रहा है उसका भी इंश्योरेंस कैसे होना चाहिए, क्या करना चाहिए वगैरह, वो छोटे से हम उस पर डिस्कस करेंगे. इंश्योरेंस का मतलब है जैसे आपका लाइफ इंश्योरेंस तो होगा ही होगा, मेडिकल हेल्थ भी इंश्योरेंस भी है, पर अगर आप एक एयरप्लेन में ट्रैवल करते हो तो उसके लिए अलग से इंश्योरेंस का प्रोविजन है. एंड अकॉर्डिंगली अगर लिफ्ट में कोई घटना होती है, अपघात होता है, एक्सीडेंट होती है, तो उस पे कंपनसेशन वगैरह के बारे में भी अब बातचीत करेंगे. आज के हमारे स्पेशल इनवाइटी है एडवोकेट सुनील आहिया, एंड आई विल रिक्वेस्ट आवर कमिटी प्रेसिडेंट मिस्टर मोहम्मद अफजल to introduce him and invite him. But before we do that, I would like to inform everybody that we have already conducted 4 webinars on topic of A. Policy making for lift law reforms. B. Safety features requirements for lift law reforms. C. Lift users, accident insurance, compensation, etc. D. Ensuring safety and avoiding lift accidents. The YouTube videos of all these things are uploaded on our website, and everybody can visit and watch. In all these 4 webinars, we have collected good number of inputs and views given by our friends who attend our webinars. Our today's special invitee, Advocate Sunil ahya, is going to guide and help us in filing the court proceedings. I invite our Lift Law Reform Committee President, Mr. Mohammad Afzal, to introduce and welcome our today's guest, Advocate Sunil ahya. Mr. Mohammad Afzal, over to you, please. Thank you. Uh, Good evening to everybody. If I talk about Sunil Ahya, he is an advocate by profession, practicing in the Bombay High Court as well as the Supreme Court. In the matter related to RTI, writ petitions, PIL, cooperative societies, and allied matters. Earlier, he was a manufacturer of microcontroller-based electronic products. He is an active citizen, contributing significant time on guiding other citizens in exercising their rights to access information under the right to information. He has been working on transport related issues since last 10 years. He is a moderator of an online forum by the name rtiindia.org. He is also an active member of few NGOs. So basically, he is an activist by nature, but also practicing in the High Court and Supreme Court. I would request Sunil Ahya ji to take it forward from here. Good evening, Sunil Ahya ji. I'm not very used to Google Meet. This is the first time I'm participating in a Google Meet. Mostly I'm used to Zoom. So I could not figure out how to actually use this software. Abdul bhai, I would request you and Hemant bhai to take it forward because I am here to absorb. You have been working on the subject for some time. I'm still trying to grasp and understand as to what exactly is the nature of PIL that we would like to file in Bombay High Court and understand the subject completely before we approach the Honorable Court. So I've been going through some of the minutes of the previous meetings,
And I have a little bit of gist of idea of what exactly has transpired so far, but still I do not have a complete grip on the subject as to what exactly the subject is. I understand that we need to approach the Honorable High Court seeking certain relief in the matter. But however, I think you people have been leading on this subject. So if you carry forward the discussion, I may try and contribute whatever knowledge that I have gathered on the subject. So I would request you to please continue and lead the subject. And I'll participate and try and absorb it. Okay. Mr. Sunil ahya, as you are very well aware, that I had filed a PIL petition in year 2010 regarding lift inspection. At that point of time, there were 86,156 lifts across Maharashtra. And to inspect the lifts, there were only 16 engineers. According to the PIL, and because of the PIL, 256 engineers were inducted through MPSC. And as per the Bombay Lift Act 1939, it was mandatory on the part of the PWD to inspect each lift twice in each year. So if you calculate 86,156 lift into twice in each year, it comes to around 1,72,305 and odd inspections across Maharashtra city-wise. Unfortunately, there were only 16 engineers. So it was humanly not possible for the PWD to inspect all lift twice in each year. So as per the various High Court orders, it was made, inspection was made once in each year. Now, besides the inspection once in each year, the High Court had directed the PWD to upload all the inspection reports on the website, PWD website, city-wise across Maharashtra. Now, in that particular website, you had which building is being inspected, which is the electrical inspector who's inspecting the lift, what was the amount of fees that was paid, what was the inspection report, what was the fatal and non-fatal accidents. Besides this, they also had to update the number of lifts that was increasing each year. So going by that particular standard, it was given to understand that every year 5,000 lifts keep adding each year. So if you see the current scenario, there are around 1,25,000 lifts to be inspected each year. PWD and Energy Department had separated on the 26th of Feb 2015. Thereafter, PWD became totally out of the picture and Energy Department has been handling the inspection of all the lifts across Maharashtra. It is very, very unfortunate to know that from 2015 onwards, the Energy Department did not subscribe to the website as mandated and directed by the High Court. So there was no data which was uploaded because there was no website up till the mid of 2021. It is only after I started filing RTIs and I started questioning them that they subscribe to the website, but that is grossly inadequate because they don't have the data of entire Maharashtra city-wise, and they have not uploaded most of the parameters that were supposed to be uploaded as per the directions of the High Court. Now, that was the basic thing which happened in year 2012. Current scenario is that the High Court had told me to come back with a fresh PIL if there is any lacuna or if the compliance is not there. So that's how I and Hemantji contemplated, and we started a fresh webinar whereby we would be currently
going in for a fresh PIL and looking into the fact that there are many other things that needs to be included in the Lift Act. I would further go on and tell you that because of the PIL, the Bombay Lift Act 1939 was amended, and it was changed to Maharashtra Lift Elevator and Moving Walk Act 2017. This act has been amended in 2017. Unfortunately, it has still not been notified in the official gazette. So as on today, we can say there are no lift laws available and there are no directions or rules to be followed. Now, the 2017 Lift Act has been amended and brought in front, and the Bombay Lift Act 1939 has been repealed. Further to this, the lift rule was submitted to the state government, which was sent back to them, to the energy department, for further corrections and further additions. So what we were looking at is that 2017 amended Lift Act has to be notified, and subsequently the rules need to be framed, calling for public opinion, and besides that there are various issues which has not been addressed in the Maharashtra Lift, Elevator and Moving Walk Act 2017. So in the 4 webinars that we have conducted so far, we had experts from the lift industry, and there was various points that was debated upon, deliberated upon, and the minutes of the webinar has already been forwarded to you for further deliberation. So I would request Hemantji to take it forward. Thank you, Afzal sir. So the crux of our PIL and PIL or retreat petition, as may be decided by our advocate friend, we are not restricting our PIL for any specific purposes. As of today, I was told that most lift manufacturers, they are not following what is called as BIS standardized parameters. On going through the BIS, Bureau of Indian Standards, there too I find it is sort of one-sided. Most manufacturers, except the very reputed manufacturers, they might be, following the manufacturing process and etc. But I have also come to know that there are so many other manufacturers, let us say the word local manufacturers, who do gross cost cutting and fix the lift as per the whims and fancies of these small time builders or small societies. Constitution grants us our right to life, but when I'm traveling in a lift which is not appropriate, there are several incidences we see on an average in Mumbai alone. We get approximately 50 odd cases of lift malfunction, falling, accidents, etc., etc. These are the reportable ones reported. बट आई एम श्योर कि और भी कई केसेस हैं जो अनरिपोर्टेड हैं. अगर मैं अपनी बात समझता हूं तो मुझे ऐसा लगता है कि 500 से 1000 केसेस सिर्फ मुंबई डिस्ट्रिक्ट के अंदर ही लिफ्ट हादसों के हो रहे हैं. तो मेरा राइट टू लाइफ कॉम्प्रोमाइज हो रहा है, मेरी फैमिली का राइट टू लाइफ कॉम्प्रोमाइज हो रहा है. अब क्यों कॉम्प्रोमाइज हो रहा है, क्या क्या कारणों से हो रहा है? एक तो जैसे सेफ्टी फीचर्स नहीं है लिफ्टों में. अभी रिसेंटली ये बोला गया कि हम ऑटोमेटिक लैंडिंग डिवाइसेस फिट कर रहे हैं. दोस आर हार्डली वर्किंग. अगर इफ इट इज हार्डली वर्किंग, देयर इज नो पॉइंट इन फिटिंग इट. देन इफ इट इज हार्डली वर्किंग and if I fall down, I get damaged, I get injured, my family gets injured, my relatives, my family friends, my co-members get injured. And what about the insurance compensation? What about the liability to the manufacturers? Why are the manufacturers not having any liability in the Lift Act? Vicarious liability, punishment zahir karo.
financial punishment as well as a criminal punishment also. Can this be twisted around for a class action suit under this Consumer Protection Act also? Because there are so many people who are being affected in that building, and not only in the building, in your colony, in your city as well. तो ढेर सारे ये सारे पॉइंट्स हैं जो हमें चर्चा करना है, और एक चर्चा का पॉइंट ये आएगा कि द पॉलिसी हैज टू इंक्लूड the lift accident insurances also, without any reference to the existing life insurance that may be possible. I understand कि जब हम एयर ट्रैवल करते हैं तो you have got an option of a extra insurance that is possible. I think the same is possible in state road transport buses also, and by state other transport like जैसे कि ट्रेन है वगैरह वगैरह. तो ये सब प्रोविजन इस समय एक्ट में नहीं है. That needs to be incorporated in our PIL. The most I vouch is that the department, the law should consider to actively involve civil citizens, and a committee of civil citizens should be made mandatory for every policy making on this lift laws. It may be a far-fetched idea, but the policy of constituting a civil citizen committee can be decided. There may be 2000 civil citizen members in the committee, and as and when policy decisions have to be taken place, so and so people, pre-qualified people, pre-understanding people from the industry, from the lift industry, from the legal fraternity, from experts in the field, from manufacturer side, from user side. जैसे हम जैसे user है तो हमारे को बुलाइए और deliberate करिए. These are all should be forming part of the committee. My contention is, even though it may be far-fetched, my contention is the law should include that without a mandatory consultation from the civil citizens committee, no policy decision should be finalized. Consultation should be there 100%. You reject it or accept it with or without reasonings, so that comes on record. When lift accidents happen, the same committee should come to the forefront and decide things on other things. Safety features decide करना है तो BIS में अगर safety features हम देखें तो practically negligible है. वो नट बोल्ट कैसे होना चाहिए, वो रोप कैसा होना चाहिए, वो कैबिन कैसा होना चाहिए, ये वो सब चीज होना चाहिए. ARD का ऑटोमेटिक रेस्क्यू डिवाइस वगैरह वगैरह का पैरामीटर दिया हुआ है. But those parameters are decided by industry experts. Industry experts do not form even the 0.01% users. Users are you and me. Why don't you take into consideration what is going to be happening to us? So all those points need to be incorporated in the policy making of lift laws. Then there are safety features. Safety features में भी हम काफी कुछ कर चुके हैं. जैसे I was advocating that the lift door should be of fiberglass, unbreakable, high heat resistant fiberglasses with micro inverted holes in that, cone holes, so that it can take off the air pressure also, and it is a see-through thing. I do not get a phobia, I do not get fear, etc. So all those things are possible only with civil society consultations. These are all not there in the BIS thing. BIS was incorporated lots of years ago. Lift laws was formulated just now. But despite all these things, it is not there. The probable reason it is not there, which I perceive, is the lack of civil society consultation. If you consult the civil society while making laws, you listen to them, get their opinion. Don't say कि भाई हमने ये पॉलिसी बना लिया है, उस पॉलिसी के ऊपर हम पब्लिश करेंगे और पब्लिक ओपिनियन आने दो. आप कभी पब्लिक ओपिनियन को डिस्क्लोज नहीं करते हो, ना पब्लिश करते हो कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ. And you do as like what you want to do. The lawmakers in this case do
what they want to do. It is another thing that we are a democratic country. We have delegated authority to the lawmakers to do the needful, but I believe that needs to change. When it needs to change, the best and foremost is a jury system. जैसे अमेरिका में जज के साइड में एक ज्यूरी सिस्टम है, 11 और फिगर के एक कमेटी बैठी हुई है, वो मोस्ट ऑफ द केसेस डिसाइड करता है. The judge only moderates the entire thing and takes his final decision. But it is based only and only on the jury system. Same to same concept हमारे ये सिविल सोसाइटी कमेटी करेगी. And it is nothing illegal in it. It is not going to hurt the judiciary. It is not going to help the law. In fact, it would act as an alternative dispute resolution mechanism also. So why not? When worldwide alternative dispute resolutions are being formulated, etc., are being incorporated, and why not over here? Why not start over here? I do not know how the court has to be approached to this thing, and how the legislature has to be approached onto this thing, whether this is possible or no. But I believe we should make it try. Secondly, the lift insurance, the accident insurance policies by IRDA, Insurance Regulatory Department, needs to be changed. कि लिफ्ट में ट्रैवल करना हर व्यक्ति का सेपरेट इंश्योरेंस होगा और उसको कंपनसेशन अलग से मिलेगा. अब ये कंपनसेशन कौन कौन देता है, इसकी परिभाषा, इसकी पॉलिसी डिसाइड करनी है. मैन्युफैक्चरर का कितनी लायबिलिटी है, एएमसी वेंडर जो मेंटेनेंस कर रहा है आपकी लिफ्ट का, उसकी कितनी लायबिलिटी है, लिफ्ट ओनर अगर वो कमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट में है तो कमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट का ओनर कौन है, सोसाइटी में है तो ओनर कौन है. नाउ इन ऑल दिस थिंग्स मास्टर्स लायबिलिटी के अंतर्गत दिस आर ऑल द ओनर्स, द ट्रस्टीज ऑफ द लिफ्ट, द ऑपरेटर्स, द ओनर्स. बीएमसी एक्ट में भी डिस्क्राइब किया हुआ है कि बिल्डिंग का ओनर या ऑक्यूपेंट कौन है, उसके ऊपर प्रोसिक्यूशन लॉन्च होता है. दैट इज एक्सेप्टेड इन लॉ. एक्सेप्टेड नहीं, मैंडेटरी इन लॉ. एंड देन the civil society committee will devise ways, because it is for our own self. If it is for myself, you should ask me कि भाई ये सेफ्टी फीचर्स में और क्या क्या होना चाहिए और क्या क्या नहीं होना चाहिए, लिफ्ट में एक्सीडेंट्स कितने होना चाहिए, एंड सो. A handful of people formulating BIS standards, a handful of people formulating these laws have limitations, will always have limitations. But a civil society committee, the actual aggrieved or the affected people, we should consult them. Worldwide, ऐसा हो नहीं रहा है. That is why you can understand that there are several hundreds of loopholes. I am repeating, several hundred of loopholes in each act of our country. You name it IPC, you name it CRPC, you name it MCS Act, this is a Cooperative Housing Society Act, even the RTI Act also. If I were to discuss and to keep on pointing out, I would say that for every act, we can take out, we or I can take out at least 100 loopholes into that, and that can be modified. But this was not done. These loopholes were there because you did not consult the affected persons. You did it unilaterally. This unilaterally concept in a democratic system, just because we have elected you and you derive power from our representation, has to be discontinued, stopped, or restricted. This is my say up to now. We will proceed further. Over to you, Sunil ji. I would like to intervene here. Yes, sir. As far as the BIS is concerned, as per Mr. Tuck Matthew, we were informed that BIS is only there to set the standard. It is not an enforcing agency. So this is one thing that has to be kept in mind. Second thing is, I had filed an RTI application, say about 8 to 10 years ago, asking the building proposal as to the number of buildings which are not having occupation certificates. Now the question is, as per the energy department, if the building has
no occupation certificate, they don't grant the lift license. Now, let me presume that 80% of the building in Maharashtra are not having occupation certificate. It it We can say that 80% of the buildings having the lifts are running illegal lifts. So there is no law on that particular thing, and people who get involved in any sort of accidents, they have got no say because they don't have a valid lift license, and they cannot do anything about it. So this is very important, and we need to include this in our petition. Over to Sunil. Thank you, Hemant. Thank you, Afzal bhai. Okay, I've been trying to jot down certain points that you made, and I would like to see if I can speak on some of those points. The first point that was mentioned by Afzal bhai was that the act has not been notified. Now, basically, what happens is that whenever an act is enacted, it comes into force unless a particular date has been mentioned for it to come into force. I've been just trying to go through that Act 2017. If it has been enacted, I'm not sure. I think it has been enacted, and so therefore it doesn't require to be notified once it has been enacted. What is required to be notified is the rules, and the rules have not been notified so far. But then I was just going through the Act 2017, and in section 39, it talks about repeal. So it repeals the previous act, but then it allows instruments and documents which have been notified under the previous act to continue. So the previous lift rules will continue until and unless the new rules are in place. So therefore, new rules need to be formed. That's a different subject. But so far as notification is concerned, the previous rules should be able to continue because the act has been repealed, but whatever instruments and documents that have been made under the previous act, they continue. So therefore, unless we are able to suggest new rules on the subject, which we think are missing or which needs to be made, then that would be the subject. That was the first point. Second point, I'll just mix up the points made up by Hemant ji and Afzal bhai because I've not kept them separate. Now, one of the points made by, I think, Hemant ji was about the vicarious liability. Now, if you look at the Act of 2017, under Section 25, it says concurrent liability. If the lift manufacturing company can be held responsible for the accident that has happened. So, suppose the lift manufacturing company has not done what it's supposed to do as far as the maintenance is concerned, or if there is some manufacturing defect in the lift, if it can be attributed to the lift manufacturing company, they have the liability of that particular lift. If accident happens, they are liable. There are of course penalties also prescribed under section 25, I suppose. I'll have to check the section, but there are penalties also prescribed. So if an offense has been committed under the act, then there are penalties prescribed for it. And one is to fix the responsibility. Section 25 was for concurrent liability. And then I think section 32 is for penalties. Apart from that, if any, there is a partnership firm or a company, then that partner or the director or the secretary or the person in charge of that particular department in that corporate company or whichever company which has actually installed the lift, they can be held responsible and they can be penalized. Those provisions are there under the Act. So far as insurance is concerned, that is there in section 23. So an insurance has to be there. They are supposed to take insurance. If they are not taking insurance, then we need to have facts before us, and then we can approach the court or the executive. Wherever people have not taken insurance, insurance is under section 23. The owner shall, after the completion of the erection of such lift or escalator or moving walk, ensure third-party insurance so as to cover the risk of passengers using such lift or escalator or moving walk. So, insurance is mandatory. The insurance shall be taken. Now, owner of the lift has been defined somewhere in the definitions in the 2017 Act, and from what I understand,
I'm not able to go through that particular definition right now. I'll have to scroll up in my PDF file. But owner has been defined as a person who is actually, like, I would say, who is in charge of running the lift. So maintenance would be from the company side, and the owner would be a cooperative society or the owner of who is actually responsible for running the lift day to day. I'll have to go through the definition, but that owner is responsible. So I believe in case of cooperative society, it is the responsibility of the cooperative society to go in for the third party insurance, which is mandatory for people who are traveling and are at risk in that lift. In any lift that a person is traveling, any person who is traveling by that lift uh, would get the benefit of that particular insurance. Uh, And I think Afzal bhai mentioned about without OC, the permissions are not granted for the lift. That is what you meant to say, I suppose, Afzal bhai? Yes. It was 10 years back, right? You are referring to some data 10 years back. Yeah, it was in another context of unauthorized construction, but the BMC told me that they don't maintain any data as far as occupation certificate has been granted or not granted. And on the other hand, when we talk about lift license, when I spoke to the chief electrical inspector, I was informed that those buildings who have got no OC license cannot officially be given. So probably it is the contractor and the managing committee in connivance through bribe or something, they procure the license. But officially, it is not to be taken into account. So that it's a big lacuna, and I think so we need to address that issue. And we are talking about 1,25,000 lifts in Maharashtra as on today, and every year 5,000 lifts are being added. So if the occupation certificate is not there, and if the license cannot be granted, then it is a very serious issue. So what exactly are we contemplating? Are we saying that license should be granted without occupation certificate or after the occupation certificate? So what exactly? I feel that in case of any accident, and if the individual wants to approach the court, or if the society wants to approach the court, the energy department can very well say that the lifts are illegal. You know, we need to deliberate on this particular point, and but it's an open book that. As per the energy department, that if the building has no OC, officially they cannot grant any license. That would mean that if there is no occupation certificate, no lift license can be granted. However, lifts are still running in those buildings without occupation certificate and without a valid license. In which case, what we are contemplating is that if there is no occupation certificate and if there is no lift license granted because of that, then those lifts should not be running in the first place, because then none of those provisions of the acts will apply. Lift is running illegally. सुनील जी, ऐसा है कि महाराष्ट्र में लिफ्ट जो बनती है, लिफ्ट बनती नहीं, सॉरी, बिल्डिंग जो खड़ी होती है, दैट इज कवर्ड अंडर MRTP, म्युनिसिपल लॉस और टाउन प्लानिंग एक्ट. जैसे अगर आप म्युनिसिपल एरिया में नहीं हो तो टाउन प्लानिंग एक्ट से आपको परमिशन लेना है, और म्युनिसिपल एरियाज में तो लोकल म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, जो भी काउंसिल कॉर्पोरेशन होगा, उसे परमिशन लेना है. अब कई बार क्या होता है कि मानो अगर ओनर ने 7 फ्लोर की बिल्डिंग का परमिशन लिया, तो ऑब्वियसली लिफ्ट भी 7 फ्लोर की ही देना है. लेकिन अगर वो ओनर किसी कारणवश, जैसे बॉम्बे में बोरीवली में मेरे सामने की एक बात है कि भाई उसके 7 फ्लोर्स है, लेकिन बिल्डर ने कंस्ट्रक्ट कर दिया है 10 फ्लोर. नाउ दिस पैरामीटर शुड बी इंक्वायर्ड एज ए पॉलिसी इन द लिफ्ट लॉज इटसेल्फ. जैसे आप बता रहे थे कि रूल्स में कुछ इनकॉर्पोरेट करना है. So now if the lift department, energy department has to check out कि बिल्डिंग अगर इनकम्प्लीट है किसी कारणवश, लिफ्ट का वेल है, पैरामीटर्स अलग होती है लिफ्ट के वेल के लिए. लिफ्ट का वेल को अप्रोच करने का भी एक पैरामीटर है. यू कैन नॉट हैव ए लिफ्ट जस्ट राइट इन फ्रंट ऑफ ए स्टेयरकेस. डीसी रूल्स वगैरह में
अगर देखेंगे थोड़ा सा उसका भी डिस्क्रिप्शन मिलेगा वहाँ पे, एंड सो एंड सो. So the exit and entry of the lift also has to be according to the municipal sanction plans. The architect certifies it. Yes, it is okay. But when there is no OC, the architect is not certifying that the building is completed as per the DC rules, National Housing का जो लॉ है वो, MRTPs के लॉ है वो, फायर एक्ट के लॉज है वो, वगैरह वगैरह. सो दिस शुड बी मेड मैंडेटरी कि जब तक आपको ओसी की कॉपी नहीं आए हाथ में, आप लिफ्ट लाइसेंस ग्रांट मत करो. क्योंकि या तो आप साथ वाले की लिफ्ट के लिए ग्रांट कर रहे हो तो वहां तक ठीक है, लेकिन जब ये पता चलता है कि आप लाइसेंस 10 फ्लोर के लिए ग्रांट कर रहे हो, तो लिफ्ट वो एडिशनल 3 फ्लोर जो इलीगल है, रिस्क फैक्टर बन जाती है वो चीज. अल्टीमेटली इट इज माई लाइफ, प्लीज डू नॉट ग्रांट लाइसेंसेस टू दैट थिंग. So that the department must be compelled to do so. अभी छत के ऊपर है, लिफ्ट 7वें माले करते हैं, तो उसका जो लिफ्ट का मोटर रूम है वो 7.5 फ्लोर पे होगा. यहाँ पे वो 3 फ्लोर एडिशनल इलीगल करके लिफ्ट का जो मोटर रूम होगा वो 10.5 फ्लोर पे होगा. So there are so many lacunas which can be sorted out by a simple please produce OC to get a lift license. And जैसे कि अफजल साहब ने बताया, 80% of the buildings in Mumbai currently do not have a proper OC. किसी का पार्ट OC है, किसी के पास OC बिल्कुल भी नहीं है, एंड सो एंड सो. आजकल जो बिल्डिंग्स बन रहे लेटेस्ट, पिछले लेटेस्ट से एक आई से रफ ऑन फिगर पकड़ते हैं तो पिछले 5 सालों में तो OC कॉन्शियस लोग हो गए हैं. और फिर भी छोटे छोटे बिल्डर्स है, दे आर नॉट कॉन्शियस अबाउट इट, बट येट पीपल ऑक्यूपाई इट. वो लिफ्ट डिपार्टमेंट भी अनन फनन में बिगर जांच पड़ताल करे हुए, बिगर डॉक्यूमेंट लिए हुए आपको लाइसेंस ग्रांट कर देता है. अब जैसे आपने बताया लिफ्ट एक्ट में नॉट मच पैरामीटर्स आर गिवन, परमिशन लेगा ओनर से और लिफ्ट लाइसेंस ग्रांट कर देगा. दे आर नॉट चेकिंग. अब वो ये बोलता है कि भाई हमारा काम नहीं चेकिंग का, बट इफ देयर इज ए क्लॉज अप्रोप्रिएट इन द एक्ट एंड द रूल्स, compliances of so many things in the rules, it should be made as such कि अगर 7th फ्लोर की बिल्डिंग है, उसके अंदर 400 फ्लैट्स हैं, तो you cannot grant a license only for one lift. There are parameters to that also. 10 फ्लोर की बिल्डिंग है, 6 फ्लैट पर फ्लोर है, into 60 फ्लैट्स हो गए, into at least 5 occupants per फ्लैट, 300 लोग, into one single lift of 4 person per cabin or 6 person per cabin. How is it going to matter? So all these things also has to be factored in. Ki what is the lift capacity of the lift that should be installed in a building? 1 lift, 2 lift, what capacity, and so and so. अभी लिफ्ट है, उसमें प्रेशर का कोई इंतजाम नहीं है. अगर 10th फ्लोर से किसी पेशेंट को नीचे लेकर जाना है तो नो सर, यू डू नॉट हैव एनी conditions or parameters to it. So all these factors was not considered in the BIS. Again, I will revert back. Why it was not considered? The Act provides for BIS compliances. That is only for the hardware part, for the nut bolts, for the ropes, for the electricals, etc., etc. But if you see, there are a lot of deficiency and lacuna in that BIS also. I'm not going to go through that because that is again a technical thing. I'm not qualified for that. But all the same, when I travel in a lift and if I am observant, I will see कि buttons कैसा लगा हुआ है. तो मुझे ये लगता है कि नहीं भाई ये तो BIS पैरामीटर के विरुद्ध में लगा हुआ है. फिर मैं ये देखता हूँ कि भाई वेंटिलेशन कहाँ पे है इसके अंदर, तो भाई नहीं वो भी नहीं हो रहा है, वो भी प्रॉब्लम दे रहा है. जैसे उदाहरण के तौर पे आई जस्ट समराइज इट आउट, कुछ कुछ पॉइंट्स बनाए थे. जैसे अभी लिफ्ट चल रही है, लिफ्ट नहीं चल रही है, तो क्या होना चाहिए? कम से कम एक ऐसा तो करो कि रेड लाइट ब्लिंकिंग अंदर दे दो, ताकि लोगों को लगे कि वे लिफ्ट चल रही है या नहीं चल रही है. इंटरकॉम कनेक्शन का पैरामीटर नहीं दिया हुआ है, फायर एक्सटिंग्विशर्स का दिया हुआ है. ट्रांसपेरेंट लिफ्ट रेसिस्टेंट कैबिन, जैसे हमारे एक एक्सपर्ट ने कहा कि भाई लिफ्ट का मेटल केज होना चाहिए. मुझे हाइपरटेंशन की बीमारी है, मुझे एक फोबिया है, मैं बंद स्टील के कैबिन में 6 साइड के क्यूबिक में अगर मैं बंद में ऊपर नीचे जाता हूँ तो मुझे फोबिया हो जाएगी अगर लिफ्ट सडनली बंद हो जाती है. तो क्या स्टील कैबिन के अलावा और कोई रास्ता नहीं था?
नहीं था, अगर प्रिज्यूमिंग अगर नहीं था, फॉर ए मोमेंट अगर हम ये भी सोच लें, तो सिविल सोसाइटी को पूछते तो वो रास्ता भी बताता ना। सिर्फ आप सोचते रहोगे तो वो रास्ता जो सिविल सोसाइटी के मन में है, जिसको हम कहते हैं टिपिकली कि भाई ग्रास रूट लेवल के लोग आपको ज्यादा आइडियाज देंगे। आप एक्सेप्ट करो नहीं करो, आप ये देखो कि टेक्निकल जो आइडियाज मिले वो टेक्निकल पैरामीटर्स के अंदर फिट होते हैं क्या, क्या हम ये अप्लाई कर सकते हैं क्या। देर इज नो हार्म इन लिसनिंग टू द पीपल एंड इनकॉर्पोरेटिंग द सेम। देर आर सेवरल अदर थिंग्स लाइक जैसे हमने एक बार आई थॉट ऑफ की ओवरलोड एंड अंडरलोड प्रोटेक्शन होना चाहिए, which should be defined by an lift microprocessor control, which should show कि भाई लिफ्ट ओवरलोड हो गई है या अंडरलोड हो गई है। हमने एक बार बोला कि भाई चलो 30 किलो के नीचे की लिफ्ट को प्रोसेस नहीं करने देना चाहिए, तो फिर हमारे एक एक्सपर्ट ने ये बोला कि अगर 30 किलो के नीचे होगा तो लिफ्ट खाली है तो ऑपरेट नहीं करेगा। दैट कैन बी कंट्रोल्ड बाय ए माइक्रो प्रोसेसर, एंड इट इज नॉट दैट दिस माइक्रो प्रोसेसर कंट्रोल parameters are not being used for something else. It is there already, but these are not there in the BIS. And what should I conclude? Is the BIS complete in all respects? I would say it is not complete in all respects. Then there are certain things like, you can have an individual beeping. The safety features की बात कर रहा हूँ मैं. When the doors are closing, lift will not move till both the doors are closed. जैसे एक इंस्टेंस पे एक वीडियो दिखाया था हमने पिछले एक वेबिनार में, और मैथ्यू साहब हमारे जो इंडस्ट्री एक्सपर्ट थे वो आए, तो उन्होंने भी दिखाया कि बच्चा कैसे दो लिफ्ट के दरवाजों के बीच में फंस गया हुआ है। तो ऑल दोस थिंग्स कैन बी टेकन केयर ऑफ क्वाइट इजीली एंड क्वाइट इजीली। I propagate 2-3 things. One is vicarious liability, provision for damages and compensation from manufacturers, from AMC vendors, and from operator or owner of the lifts, and appropriate third party insurance। थर्ड पार्टी इंश्योरेंस का प्रोविजन दिया हुआ है लिफ्ट एक्ट में, आपने सही बोला, आई चेक्ड इट, बट IRD has not made any provision as such for that particular thing. It is not made it mandatory. तो हमें ये कुछ चीज करनी होगी जो आई एम pressing forward. Over to you, Afzal Saab and Sunil ji. Sunil ji, can you throw some light on this? मैं कह रहा था कि ये सारे चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें इस पिटिशन में डालना है, जो बहुत महत्वपूर्ण है, और जो सेफ्टी को लेके और इंश्योरेंस को लेके और बहुत सारी चीज़ों को कवर करती है। आई थिंक सो सिटीजन्स जो हैं उनकी ओपिनियन, उनकी पार्टिसिपेशन इज़ ऑल्सो इक्वली इम्पोर्टेंट, क्योंकि जैसे हेमंत जी ने बताया है कि लिफ्ट हमारी है, हम उसमें ट्रैवल कर रहे हैं, तो हमें डिसाइड करना है कि हमें क्या चाहिए। ओवर टू सुनील। अब्दुल भाई, हमारे सबसे पहली बात होती है कि जब हम कोर्ट को अप्रोच करते हैं तो हम चाहते क्या है, तो हमारी प्रेयर्स क्या है। तो प्रेयर बहुत स्पेसिफिक होनी चाहिए, और एक जो मेन प्रेयर है वो हमारी एकदम स्पष्ट और क्लियर और संक्षेप में होनी चाहिए, और उस मेन प्रेयर से लगती हुई बाकी सारी प्रेयर होनी चाहिए। तो ये सारी चर्चा को हमें इसको समराइज करना होगा। उसमें से जो मेन प्रेयर है वो मेन प्रेयर को क्रिस्टल क्लियर समझते हुए उसके बाद में बाकी सारी प्रेयर वो मेन प्रेयर से फ्लो करे, उस किस्म से उसको अरेंज करना होगा। तो सारे पॉइंट्स को समराइज करके इट हैज टू बी वेरी वेरी क्रिस्टल क्लियर सो व्हाट एग्जैक्टली वी आर सीकिंग फ्रॉम द कोर्ट। There was one thing what I would say कि as per the energy department there is a checklist of 44 defects। अब ऐसा होता है कि साल में एक बार एनर्जी डिपार्टमेंट ऑडिट करती है, बट ऑन अ मंथली बेसिस it is the cooperative housing society who is responsible to engage a impaneled lift maintenance contractor। और मेरा ये तजुर्बा रहा है कि जब लिफ्ट मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्टर आता है तो आता है, वो लिफ्ट रूम में जाता है, जाके चार दीवारी देखता है, एक आध दो पॉइंट्स को नोट डाउन करता है। लिफ्ट के अंदर एक लॉग, एक कार्ड होता है जिसमें लॉग, वो जितने भी पैरामीटर जो भी चीज़ें हैं वो लॉग इन करता है, और दैट्स इट।
मेरा मानना ये है कि हमें ये प्रेस करना चाहिए कि जब लिफ्ट मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्टर हो या एनर्जी डिपार्टमेंट हो, चाहे वो 12 महीने लिफ्ट मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्टर लिफ्ट को मेंटेन अपना इंस्पेक्शन करता है या साल में एक बार एनर्जी डिपार्टमेंट ऑडिट करती है, ये सारे चीजों को दे शुड गो एज पर द 44 डिफेक्ट्स चेकलिस्ट। तो जब वो क्या होता है कि जब लिफ्ट मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्टर आता है, अपनी शक्ल दिखाता है सोसाइटी के मैनेजिंग मैनेजर को और वो लिफ्ट रूम के ऊपर जाता है, वहां पे जाके वो क्या करता है, नोबडी हैज गॉट एनी क्लू। तो अगर वो मैंडेटरी हो जाए कि 44 डिफेक्ट्स के हिसाब से वो एक एक पैरामीटर को चेकलिस्ट करे कि भाई हाँ ये चीज है, ये चीज नहीं है, ये चीज होना चाहिए, ये डिफेक्ट है, ये पार्ट खराब है, तो अगर वो डिफेक्ट के वो 44 डिफेक्ट के हिसाब से अगर वो इंस्पेक्शन करता है, he should sign that particular inspection report, he should keep a copy for himself, he should keep a copy for the society, and the same signed copy should be submitted with the energy department, ताकि क्या है, तीनों को अवेयर हो कि भाई ये बिल्डिंग में जो भी इंस्पेक्शन हो रहा है तो ये 44 डिफेक्ट्स में ये चीजें, एंड देन अगर कोई सिटीजन अगर एनर्जी डिपार्टमेंट में कंप्लेन करता है तो वो चेक कर सकते हैं कि भाई पिछले महीने जो इंस्पेक्शन हुआ था उसमें ये लकुनास पाए गए थे, ये पार्ट्स खराब थे, तो मैनेजिंग कमेटी ने इस चीज को दुरुस्त क्यों नहीं करवाया या दुरुस्त नहीं करवाने के क्या वजह हैं, या अगर एक्सीडेंट होता है तो क्या ये चेकलिस्ट के हिसाब से जो पार्ट्स खराब थे उस वजह से हुआ है या ह्यूमन एरर के वजह से हुआ है। ओवर टू यू सुनील। अफजल भाई, मेरे ख्याल से आपने बहुत ही अच्छा पॉइंट रेज किया है, और जहाँ तक मैं समझता हूँ, और शायद हेमंत जी बेहतर बता पाए, पर ये मुझे ऐसा लगता है कि एक जो सरकारी अफसर होता है, इलेक्ट्रिकल इंस्पेक्टर होता है, वो साल में एक बार ऑडिट करना उसके लिए मैंडेटरी है, और वो ऑडिट करता है। और जो आप कहते हैं 44 जो चेकलिस्ट है डिफेक्ट्स का, वो 44 पैरामीटर्स के ऊपर वो सर्टिफाई करते होंगे कि सारे पैरामीटर्स ओके है कि नहीं है लिफ्ट पे, वो साल में एक बार वो शायद सबमिट करते होंगे। लेकिन आपके कहने के हिसाब से एक इंटरनल ऑडिट होना चाहिए कि जो आपका एएमसी जिनको दिया गया है, जो मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्टर है, उसको हर महीने एक इंटरनल ऑडिट रिपोर्ट सबमिट करनी चाहिए, ताकि 12 ऑडिट रिपोर्ट हो और एवरी मंथ 44 पैरामीटर्स पे वो लिफ्ट सही थी कि नहीं। हाँ जी अफजल भाई। ये मेरा एक्सपीरियंस रहा है कि जैसे कि उदाहरण के तौर पे जब वो मेरे बिल्डिंग में इंस्पेक्शन के लिए आए थे, ये एनर्जी डिपार्टमेंट के लोग या वो लिफ्ट मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्टर, 99.9% ऑफ द केसेस उनको उनके हाथ में वो 44 डिफेक्ट का लिस्ट ही नहीं होता है, या अगर होता है भी तो वो उस चीज को कैरी नहीं करते, वो इंस्पेक्शन को उस तरीके से अंडरटेक नहीं करते हैं, विच इज अ वेरी सीरियस इशू इन इटसेल्फ। और अगर कोई एक्सीडेंट होता है तो दे शुड बी हेल्ड डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल। मैं आपसे सहमत हूँ, क्योंकि लिफ्ट एक ऐसी चीज है जो डेली उपयोग में आती है, और साल में एक बार ऑडिट होना शायद सफिशिएंट नहीं होगा, और इलेक्ट्रिकल इंस्पेक्टर के लिए, सरकार के लिए ये शायद इम्पॉसिबल हो जाएगा कि हर महीने उसको ऑडिट करें। साल में एक बार ऑडिट करना भी शायद उनके लिए मुश्किल होता होगा। तो अगर जो एएमसी जिनको दिया गया, जो मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्टर है, उसी को वो ऑडिट के लिए रिस्पॉन्सिबल ठहराया जाए और उसको 12 ऑडिट रिपोर्ट सबमिट करना है, मंथली ऑडिट रिपोर्ट सबमिट करना है, तो ये एक बहुत ही अच्छा सुझाव है कि जिसको इम्प्लीमेंट करने से लिफ्ट की सेफ्टी काफी बढ़ सकती है। तो अगर ये नहीं है तो होना चाहिए। साइन करके सोसाइटी का मैनेजर का सिग्नेचर हो, कॉन्ट्रैक्टर का सिग्नेचर हो, और ये चीज एनर्जी डिपार्टमेंट में सबमिट हो कि जैसे आपने बताया कि इट बिकम्स अ पब्लिक डॉक्यूमेंट, और अगर कोई एक्सीडेंट होता है और अगर इफ यू गेट इट बाय आरटीआई, देन लीगली दे विल बी held liable, and we should include this criminal negligence liability on the lift maintenance contractor, the managing committee, as well as the owner. जी सुनील जी। आपका सुझाव तो बहुत ही अच्छा है। ये मेरे ख्याल से जो मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्टर होता है, उनके ऊपर ये जवाबदारी सौंपी जा सकती है।
ओनर का मुझे इसमें पता नहीं, बिकॉज ओनर की रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि वो एक एएमसी किसी को दे दे। अब एएमसी जो मेंटेन करता है लिफ्ट को, उनकी जवाबदारी होती है ना कि उनको पता है एक्चुअली वो 44 पैरामीटर्स पे लिफ्ट सही है या नहीं है, क्योंकि वो डेली उसके ऊपर काम करते हैं, आके मेंटेन करते हैं और उनकी जवाबदारी है रिपोर्ट देने की। ओनर ने वो मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्टर को मेंटेनेंस के लिए अपॉइंट करना चाहिए, यहां तक ओनर की जिम्मेदारी होनी चाहिए। जी अब्दुल भाई। देखिए क्या होता है कि मेंबर्स लोग अपना मैनेजिंग कमेटी को कहते हैं कि भाई आप ये लिफ्ट खराब है या ये चीज़ उसमें खराबी है। जब बहुत बार ऐसा पाया गया है कि जब लिफ्ट मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्टर लिखित रूप में लिख के देता है कि भाई ये पार्ट्स को चेंज करना है, तो मैनेजिंग कमेटी या तो उसको टालम टोली करती है या उसको ये बताया जाता है कि भाई पार्ट्स अवेलेबल नहीं है या फंड्स अवेलेबल नहीं है। तो ऐसी सूरत में ये बहुत इम्पोर्टेंट होता है कि आप यहाँ पे लिफ्ट को शट डाउन करें। अभी मैं आपको बताऊं, 2021 में दिल्ली की एक घटना है जहाँ पे लोगों ने कंप्लेन किया मैनेजिंग कमेटी को। उन्होंने कि भाई लिफ्ट खराब है, लिफ्ट कॉन्ट्रैक्टर ने लिख के दिया कि ये पार्ट खराब है और उन्होंने मैनेजिंग कमेटी ने लिफ्ट को बंद कर दिया। उसके पश्चात लोगों की ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे उस वक्त तक कोई हादसा नहीं हुआ था। ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड को लेके मैनेजिंग कमेटी ने लिफ्ट को दोबारा चालू किया। अब जैसे ही उन्होंने चालू किया तो दूसरे दिन एक्सीडेंट हुआ, एक लेडी वहां से गिर के मर गई। तो ऐसे सूरत में या तो उनको कंप्लीटली लिफ्ट को शट डाउन करना चाहिए up till the time till the lift does not get repaired, and going further one step कि रिपेयर होने के बाद एनर्जी डिपार्टमेंट के लोगों को बुलाया जाए, उनको बोला जाए कि आप चेक करिए, टेस्ट करिए और सर्टिफाई करिए वेदर इट कैन बी पुट टू यूज अगेन। तो ये सारे चीजें नहीं होने के वजह से वो 80 साल की औरत का जान गंवाना पड़ा। तो ये बहुत बड़ा लकूना है एंड आई थिंक सो वी नीड टू एड्रेस दिस। जी अब्दुल भाई, मैं सहमत हूँ आपसे कि अगर जिनको मेंटेनेंस का कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है उन्होंने रिपोर्ट सबमिट की है और वो इम्प्लीमेंट ना होने के बावजूद अगर लिफ्ट चलती रही है तो ये एक सीरियस लैकुना है और इसको एड्रेस करना चाहिए। एक्ट के अंदर क्या प्रोविजन है उसको स्टडी करना होगा, रूल्स के अंदर क्या प्रोविजन है उसको स्टडी करना होगा। क्या वो एग्जिस्टिंग प्रोविजन एक्ट में और रूल्स में मिलके नहीं है और रूल्स बनाने की आवश्यकता है, तो वो उसको स्टडी करना होगा। और उस मुद्दे पे हम कोर्ट को अप्रोच कर सकते हैं कि कोर्ट डायरेक्ट करे कि एक तो मंथली उन्होंने रिपोर्ट सबमिट करनी चाहिए, और अगर वो मंथली रिपोर्ट में अगर वो डिफेक्ट्स आती है और वो 44 पैरामीटर्स पे खरी नहीं उतरती है लिफ्ट, तो वो लिफ्ट बंद होनी चाहिए। उसके बावजूद अगर वो चलती है तो फिर ओनर की रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है इसमें। मैंने एक्ट में then we should approach the court. मोहम्मद साहब एंड सुनील सर, दो तीन चीजें मैं लेफ्ट एक्ट में देख रहा था अभी साइमल्टेनियसली। लेफ्ट एक्ट में 33 सेक्शन में ये लिखा हुआ है कि हु वाज इन चार्ज, मतलब जो भी इंचार्ज है वो लायबिलिटी होना चाहिए। सेकेंडली, एक पर्टिकुलर सेक्शन में लिखा हुआ है जैसे 33(2)(a) में कि एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स, that in our case is housing society, association of person, AOP is an housing society or an association, and one of the sections it is written that lift license, if there is no lift license then 32 section prescribes penalty of 50,000 rupees, continuing offense में 1,000 रुपये पर एक्स्ट्रा देने का है। पर here it does not prescribe any imprisonment or anything, just a penalty. This is a gross lacuna, because the penalty by an AOP, association of persons, will be borne by the society and not by any individual. But if there is a criminal negligence that is possible over here, then it will be borne
बाय द पर्सन हु इज इन चार्ज, 33(1) में लिखा हुआ इन चार्ज में। अभी एक पर्टिकुलर जगह पे ये भी लिखा हुआ है कि लिफ्ट का जो लाइसेंस का परमिशन है वो 20 साल के लिए होता है। अभी कई सोसाइटियों में लिफ्ट का लाइसेंस एक्सपायर हो गया, तो अगर हम ये सेक्शन 32 रेडवे 33 अगर लेते हैं तो हर सोसाइटी का जो इंचार्ज है, अभी इंचार्ज टिपिकली हम कहते हैं ऑफिस बेरर्स, चेयरमैन, सेक्रेटरी, ट्रेजरर, एंड मोर सो स्पेसिफिकली अगर देखा जाए तो वो सेक्रेटरी है। तो सेक्रेटरी इज द इंचार्ज, क्योंकि बायलॉ नंबर आई थिंक 160 के आसपास में ये लिखा है कि सेक्रेटरी का क्या क्या फंक्शन है। So I say the in charge person of a society is the secretary. I say that when the lift license has expired, or if it is not there, then he should be penalized as per this section 32, 50,000 rupees, continuing offense, 1,000 rupees for every day. But we should also press for vicarious liability, criminal liability, कि भाई आपने ये सब किया हुआ है। तो जैसे मोहम्मद साहब ने बताया कि majority of the buildings in Mumbai, at least in Mumbai, are functioning without a valid or without even having a lift license. तो इस पर्टिकुलर चीज के लिए अगर आप लिफ्ट को पिटिशन करते हो, जैसे मैंने एक बार 2-3 साल पहले पिटिशन किया था लिफ्ट को, 2-3 साल पहले नहीं, आई थिंक इट वाज इन 2019। तो उन्होंने बोला नहीं नहीं अभी तक तो रूल्स बना नहीं है, ऐसा है वैसा है। मैंने कहा जब एक्ट में लिखा हुआ है तो आप लिफ्ट का लाइसेंस दिखाओ हमको, आरटीआई में मांगा है मैंने, आप लिफ्ट का लाइसेंस दिखा दो, आपके डिपार्टमेंट की कॉपी दिखा दो, अगर आपके पास नहीं है तो सेक्रेटरी को आप एनालाइज करो। तो ये बात आई गई हो गई और बात खत्म हो गई। तो दिस इज वेयर आई वाज कमिंग बैक कि व्हेन यू इन्वॉल्व ए सिविल सोसाइटी मेंबर, सिविल सोसाइटी कमिटी फॉर ऑल दिस थिंग्स, देन द सिविल सोसाइटी कुड हैव सजेस्टेड कि नहीं खाली पेनल्टी इनसे काम नहीं चलने वाला है, पेनल्टी जो देगा वो एओपी देगा, वो सोसाइटी के खाते से जाएगा, आप साफ बच के साइड में निकल जाओगे। तो वो कन्विक्शन भी जरूरी है। अगर कन्विक्शन करोगे तो जैसे मोहम्मद साहब ने बताया कि भाई 44 पैरामीटर्स कंपलसरी होना चाहिए चेकलिस्ट में। जैसे ही आपने विकारियस लायबिलिटी का क्लॉज मैंडेटरी किया, ये 44 चेकलिस्ट विल बिकम 100, 44 की जगह में 100 आ जाएगा और वो कंप्लायंसेस बराबर होता ही जाएगा। जैसे एक वेबिनार में मैंने ये बताया कि मोटर व्हीकल एक्ट में, एमवी एक्ट में ये प्रोविजन है, ये गाड़ी आपके नाम पे है, अगर आपके बच्चे ने चलाया वो और एक्सीडेंट कर बैठा तो जो ओनर है, जो मालिक है या पिता है, जो भी है, गाड़ी जिसके नाम पे रजिस्टर्ड है वो भी विकारियसली लायबल हो जाता है और उसे भी अरेस्ट कर लिया जाता है। इफ यू गूगल यू विल फाइंड दिस एटलीस्ट 10 incidences बिटवीन 2 years। तो ये चीज जरूरी है। आई विश के ये किसी तरह हम हासिल कर सके इसे। I do not know whether the court will have the powers to do so or not do so, and how we can pursue it, this particular thing. इसमें हेमंत जी मैं आपके ध्यान में लाना चाहूंगा कि सेक्शन 38 में लिखा है कि द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट शैल बी इन एडिशन टू एंड नॉट इन डिरोगेशन ऑफ एनी अदर एक्ट फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स। जहां तक क्रिमिनल नेग्लिजेंस का प्रश्न है, अगर आप एस्टैब्लिश कर सकते हैं कि इनको रिपोर्ट दी गई थी और इन्होंने निग्लेक्ट किया उस रिपोर्ट को और कंटिन्यू किया लिफ्ट को, तो फिर वो आईपीसी के सेक्शंस उन पे लागू हो सकते हैं क्रिमिनल नेग्लिजेंस पे। तो लिफ्ट एक्ट में भी होना चाहिए बिल्कुल, लेकिन इन एडिशन का जो प्रोविजन है सेक्शन 38 के हिसाब से, तो दूसरे सेक्शंस भी लागू हो सकते हैं जो एग्जिस्टिंग प्रोविजंस इन लॉ है वो। I'd like to interrupt you, सुनील जी, एक बार सेक्शन 34 भी पढ़ लीजिए आप, 34। अब ये प्रोसिक्यूशन का पावर किसको दिया हुआ है? या और किसी को दिया ही नहीं है। आप कोर्ट में जाओगे तो वो केस लेने को तैयार ही नहीं, वो बोलेंगे कि सिर्फ लेफ्ट डिपार्टमेंट ही प्रोसिक्यूट कर सकता है, जैसे कि बीएमसी में होता है। जो ऑफेंसेस वो एक्ट के अंदर पनिशेबल है, उसके लिए आपको सैंक्शन लेना आवश्यक है, तो आपको सैंक्शन के लिए अप्लाई करना होगा एप्रोप्रिएट अथॉरिटी को। लेकिन अगर आप किसी और कानून में जाते हैं क्रिमिनल नेग्लिजेंस एस्टैब्लिश करने के लिए, तो मुझे पता नहीं कि प्रोविजन वहां पे एप्लीकेबल होगा या नहीं, क्योंकि ऑफेंस अंडर द एक्ट है,
बट हाँ लिफ्ट से रिलेटेड है तो इट्स अ क्वेश्चन ऑफ लॉ, बट सैंक्शन आपको लेनी होगी सरकारी. No court shall take cognizance of any offence punishable under this act except with the previous sanction of the government or such officer not below the rank of the electrical inspector as the state government may authorize in this behalf. Sanction आपको लेनी होगी उस पर्टिकुलर सरकारी अफसर की to prosecute a person under the provisions of this act. पर ये तो एक्ट में है, तो कोर्ट को हम अप्रोच करना इसके लिए मुश्किल है. इसके लिए तो लेजिस्लेचर को अप्रोच करना होगा, कानून में परिवर्तन लाना होगा. Yes, sir. That is what is my contention. When we are discussing this thing right now, who are we? We are the civil society members. हम लोग अभी इस समय we do not have any legal standing, but this same thing should be translated into a legal mandate. We need to work out something on this thing. You being an expert, maybe थोड़ा सा और सोच विचार के करके इस पे ब्रेनस्टॉर्मिंग करके कहीं ना कहीं कुछ रास्ता निकलेगा. दैट इज व्हाट आई फील. मोहम्मद साहब आप कुछ बोल रहे हो? मोहम्मद साहब हम लोग अभी 15 मिनट और एक बात करेंगे. हाँ जी. और फिर बाद में हम अपने फ्रेंड्स को इनवाइट करेंगे फॉर क्वेश्चन एंड आंसर. यस यस. जैसे कि हम इससे पहले हमने बात की कि अगर हम स्क्रू को टाइटन करें सोसाइटी लेवल पे कि 44 डिफेक्ट्स के हिसाब से मैंडेटरी हो जाए इंस्पेक्शन, तो मेरे ख्याल से बहुत सारे चीज़ें जो हैं कि भाई लिफ्ट को टाइमली रिपेयर नहीं हो रहा है या सही ढंग से नहीं हो रहा है, या अगर रिपेयर हुआ है तो एनर्जी डिपार्टमेंट के लोग आके इसको सर्टिफाई करें कि भाई ये लिफ्ट वर्किंग कंडीशन में है, इसको रिपेयर किया गया है और इसको हम चालू कर सकते हैं. तो ये सारे चीज़ें ऑल विल फॉल इन प्लेस. तो यहाँ पे अगर हम इंसिस्ट करें कि 44 डिफेक्ट्स के हिसाब से, और आगे चल के जैसे हेमंत जी बता रहे हैं कि 100 डिफेक्ट्स भी हो सकते हैं, तो यहाँ पर अगर हम टाइटन स्क्रू करें तो मेरे ख्याल से 90% ऑफ द इश्यूज विल बी रिजॉल्व्ड. जी अफजल सुनील साहब जी. मुझे ये बताइए, ये मुझे बताइए कि आपने 100 चेकलिस्ट का एक लिस्ट बना लिया, 100 डिफेक्ट चेक का, और उसमें किया है या नहीं किया हुआ है, नहीं करता है वो, तो लॉ में प्रोविजन नहीं है इस समय लिफ्ट एक्ट में 2017 वाले में कि कुछ करें. अभी वो 50,000 को जो पेनल्टी है वो इज रिलेटेड टू व्हाट, कि लिफ्ट कंस्ट्रक्शन हुआ या नहीं हुआ है, लिफ्ट का लाइसेंस है या नहीं, लिफ्ट का लाइसेंस की बगैर आप रन करो, ये लिमिटेड पर्पज ही. ऑफ कोर्स आई एम नॉट गॉन टू द रूल्स, बिकॉज जैसे सुनील जी ने बताया कि 2017 का एक्ट का रूल्स पहले वाले रूल से को कोऑर्डिनेट करना है. बट दिस एक्ट एंड दैट प्रीवियस एक्ट ऑफ एक्ट शायद पहले का 39 का था, आई थिंक सो. हाँ, बॉम्बे लिफ्ट एक्ट 1939 मेरे ख्याल से ये नए एक्ट में भी नहीं है और पुराने एक्ट में भी नहीं था. Exactly. ये सारे चीजें वी नीड टू प्रेस अपॉन इन द करंट पिटिशन, क्योंकि वी कैन नॉट क्वांटिफाई ह्यूमन लाइफ. एक बंदा भी अगर लिफ्ट एक्सीडेंट से मरता है तो मैं समझता हूँ भौचाल आ जाता है उनके फैमिली में, उनके घर में. तो हमें अगर हम एक भी लाइफ बचाने में कामयाब हुए तो हम समझे कि हम ये मिशन में कामयाब हो गए. मिस्टर सुनील जी. हेमंत जी, मैं यहाँ पे एक बात कहना चाहूँगा कि ये पहले के रूल्स आज की तारीख में वैलिड है, एप्लीकेबल है, ये विषय पे मैंने अध्ययन किया नहीं है, पर जो एक्ट में आज की तारीख में देख रहा हूँ 2017 का, उससे मेरा ये अंदाजा है. फैक्चुअल पोजीशन क्या है उसका मुझे आइडिया नहीं. शायद अफजल भाई ने ज्यादा अध्ययन किया इस विषय पे तो उनको बेहतर पता होगा, पर ये थोड़ा और डिटेल में जाके समझने की आवश्यकता है कि जो पुराने रूल्स है वो आज की तारीख में उसका स्टेटस क्या है. सुनील साहब, आई वांट टू आस्क यू 2 क्वेश्चंस. इन वन ऑफ आवर वेबिनार्स, जैसे कि हमारे अभी इस समय जो फ्रेंड्स है दे आर ऑल रिलेटेड टू हाउसिंग सोसाइटीज, हाउसिंग सोसाइटी के मेंबर्स हैं, कुछ मैनेजिंग कमेटी में होंगे, कुछ ऑर्डिनरी मेंबर्स हैं. हमारे आज के वेबिनार में लिफ्ट इंडस्ट्री की भी कुछ लोग जुड़े हुए हैं. अब लास्ट टाइम मैंने विकारियस लायबिलिटी की बात किया तो कुछ लोगों ने ये कहा कि नहीं वो तो ऑनररी जॉब कर रहे हैं, वो उसको हम कैसे विकारियस लायबिलिटी करें, तो कोई आएगा नहीं काम करने के लिए वगैरह. आई वांट टू नो फ्रॉम यू योर व्यूज एज टू व्हाई नॉट विकारियस लायबिलिटी इन हाउसिंग सोसाइटीज आल्सो.
I mean, let it be there inside the lift act itself. But some people say नहीं होना चाहिए. तो मेरी जिंदगी का कौन देखभाल करता है उस चीज को? मैं आपकी लिफ्ट में क्यों ट्रेवल करूं? मेरे को ये समझ में नहीं आता. तो विकारियस लायबिलिटी की जो परिभाषा है, या आप अगर उस पर कुछ रोशनी डाल सके तो आई विल बी ऑब्लाइज सर. अफजल भाई कुछ ऐड करना चाहते हो उसमें? सर, जैसे कि मैंने आपको बताया कि दिल्ली में जो घटना हुई थी 2021 में, और वो लेडी मर गई कि लिफ्ट बंद थी और उन्होंने ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पे उन्होंने चालू करवाया, तो डोंट यू थिंक सो दे शुड बी हेल्ड लाइबल? और जहां तक ऑनररी सर्विस की बात आती है, तो ये मेरा व्यक्तिगत ओपिनियन है कि जब आप कॉन्टेस्ट करते हैं, आप लोगों के सामने जाते हैं वोट मांगने के लिए, तो दैट इज नॉट एन ऑनररी जॉब. ये मेरा व्यक्तिगत रूप से मेरा ये मानना है. तो अगर आप इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव हो तो यू शुड बी डेफिनेटली हेल्ड आंसरेबल. जी, आप लोगों से बात करते हुए मैं एक्ट में ही देख रहा था कि ओनर की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, बिकॉज कोऑपरेटिव सोसाइटी आई बिलीव वुड बी एन ओनर ऑफ द लिफ्ट. और अगर लिफ्ट कंडीशन में नहीं है, और जैसे पहले तो फिलहाल तो वो ऑडिट की बात जो हमारी नई बात है शायद, और अगर वो फंक्शनिंग कंडीशन में नहीं है और रिपोर्ट है कि वो फंक्शनिंग कंडीशन में नहीं है, ओनर फिर भी उसको यूज में रखते हैं, तो शायद वो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आनी ही चाहिए. और वो शायद एक्ट में अगर आप इंटरप्रेट करेंगे तो इसी एक्ट के अंदर वो प्रोविजन आपको अलग से एनेक्ट करने की आवश्यकता है कि नहीं, आई हैव नो आइडिया. बट मुझे लगता है कि एक्ट के एग्जिस्टिंग प्रोविजंस में वो आ जाएगा कि अगर आपके पास लाइसेंस नहीं है और आपकी लिफ्ट है और आप उसको रन करते हैं, विदाउट लाइसेंस रन करते हैं, तो विदाउट लाइसेंस किसी चीज को रन करना, वो तो वैसे ही ये कानून में कवर्ड होना चाहिए. तो उसके लिए अलग से कोई प्रोविजन एनेक्ट करने की आवश्यकता है कि नहीं, मुझे नहीं लगता है. मुझे लगता है कि एग्जिस्टिंग एक्ट में, क्या एग्जिस्टिंग एक्ट वो प्रोवाइड नहीं करता है कि कोई व्यक्ति बिना लाइसेंस के लिफ्ट को रन करता है तो वो रिस्पॉन्सिबल होगा लिफ्ट एक्ट में, क्योंकि विदाउट लाइसेंस ही हो गया ना. अगर अगर किसी ने रिपोर्ट किया है कि लिफ्ट फंक्शनिंग कंडीशन में नहीं है और उसको फिर भी आप रन करते हैं, तो विदाउट लाइसेंस रन करना होगा. बट हाँ, आज की तारीख में प्रोविजन नहीं है कि हर महीने ऑडिट रिपोर्ट सबमिट करेगा एएमसी वाले, और एएमसी वाले की अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाएगी कि वो 44 पैरामीटर्स पे क्वालिफाई करके उन्होंने उस रिपोर्ट को सबमिट करना है सरकारी दफ्तर में और सिग्नेचर करनी है उसके ऊपर, तो उसके बाद में अगर ओनर उसको रन करते हैं जब वो 44 पैरामीटर्स पे करेक्ट नहीं है लिफ्ट, और ओनर रन करते हैं, तो शायद उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी एग्जिस्टिंग एक्ट में आनी चाहिए, ऑलरेडी कवर्ड होनी चाहिए. सुनील साहब, मैं आपको एक और भी चीज पॉइंट आउट करना चाहता हूँ कि व्हाई सिविल सोसाइटी कमिटी इज नेसेसरी. अभी आप अगर सेक्शन 32 देखोगे, लिखा है कि चलो परमिशन ऑन शैल ऑन कन्विक्शन बी पनिश्ड विथ ए फाइन. नाउ द वेरी फनी पार्ट इज विच में एक्सटेंड, द वर्ड इज मे, मतलब डिस्क्रिप्शन दे दिया है कि वो लिफ्ट का जो इंस्पेक्टर है वो बोलेगा ठीक है, मेरे पास पावर है, मैं 1,000 रुपए भी तुमको फाइन लगा देता हूँ. ओके, सो द क्राइटेरिया इज ए मे. Now this may of giving discretionary power to the authority is bad in law, because you are playing with life of somebody else. I again stress that this is the reasons, such are the reasons where civil society committee should be made. When the babus make these laws, these loopholes are to be inbuilt, that we also understand. This is not mandatory. अभी अगर आप ट्री एक्ट में देखोगे, एक जैसे ट्री एक्ट है, तो उसमें है ना मैंडेटरी है कि इतना पेनल्टी, एंड देन देयर इज अ वर्ड कॉल्ड एंड फाइन. इट इज नॉट रिटन एज और फाइन. और का बोल दिया तो वो पट्टा बोलेगा कि चलो ठीक है भाई, दो दिन की सजा और बाहर निकल जाओ. सो ट्री एक्ट प्रिस्क्राइब्स मिनिमम 7 days imprisonment on conviction and a penalty of so and so rupees. Now this particular act is so vague. अभी एक और उदाहरण ले लीजिए. जनवरी महीने में आपका लिफ्ट का चेकिंग हुआ और लिफ्ट इंस्पेक्टर आके बोलता है कि भाई आपका
लिफ्ट का लाइसेंस नहीं है, या आपका लिफ्ट क्या बोलते हैं, फैब्रिकेटेड नहीं बोल सकते, इलीगली मैन्युफैक्चर्ड है बाय अनऑथराइज्ड मैन्युफैक्चरर जनवरी महीने में, तो उसे पेनल्टी लगाता है। तो अब डिस्क्रिप्शन के हिसाब से वो 1,000 रुपये पेनल्टी भी लगा सकता है। 50,000 तो अप टू लिखा हुआ है, अप टू का वर्ड यूज कर लिया, विच में एक्सटेंड अप टू, which may extend to rupees 50,000. And then another funny part in this thing is contravention continues after conviction for the first such contravention. मतलब क्या है कि लिफ्ट का लाइसेंस फिर भी नहीं निकाला आपने, अगले साल तक लग दी, तो वो जाके सेकेंड ऑफेंस मानेंगे उसे। So these are lacunas which have been fitted in. This needs to be resolved without involving you, me, and like-minded people. This cannot be achieved. That is what I am trying to say. Every law, so many lacunas. Mohammed साहब, जी देखिए, जैसा कि बॉम्बे लिफ्ट एक्ट 1939 जो है, मेरे ख्याल से तकरीबन 78 इयर्स ओल्ड है, ठीक है, और लिफ्ट रूल जो है वो 58 इयर्स ओल्ड है। अभी आप सोचे कि हम बार बार, अभी पहला पिटिशन हमने डाला था 2010 में, जिसका नतीजा निकल के आया 2012 में, ठीक है। तो मेरा कहने का मतलब यही है, माय सबमिशन इज, कि हम एक चीज के ऊपर बार बार पिटिशन नहीं फाइल कर सकते हैं। तो हम मैक्सिमम बेनिफिट इन दी पब्लिक इंटरेस्ट अगर हम उठा सके इस पिटिशन में, बाय इंक्लूडिंग ऑल दी पैरामीटर्स हो या जो भी हम मांग रख रहे हैं, तो आई थिंक सो दैट शुड सफाइस, है कि नहीं अपना सुनील जी? मैं आपसे बात करते ओनर का डेफिनेशन ही पढ़ रहा था मैं। ओनर को डिफाइन किया गया है, owner means a person or a body of persons or a body corporate who owns or operates or maintains lift, escalator or moving box. कोऑपरेटिव सोसाइटी एक ओनर ही होगी ना, जो उसको मेंटेन कर रही है, ऑपरेट कर रही है, मेंटेन कर रही है, तो जिम्मेदारी तो उनकी बिल्कुल बनती है, दे आर द ओनर। और वो हिसाब से उन्होंने लाइसेंस के जो कंडीशन है उसको सेटिस्फाई करते हुए ही रन करना है, अदरवाइज दे आर पनिशेबल अंडर दैट। so the punishment is 1,000 rupees extending to 50K. And that too, that punishment, the penalty is to be paid by the society, not individually. सर यहाँ पे क्या है, The owner, that means. ये डिस्क्रिशनरी जो पावर उनको दिया गया है, तो यहीं पे अपना करप्शन सेट्स इन, कि भाई हम इतना ब्राइब ले और आपको कम से कम में छुड़वा दें। तो हमारा मुद्दा ये होना चाहिए कि इतना डेंट होना चाहिए ताकि वो बंदा नेक्स्ट टाइम किसी लॉ को वायलेट ना करे। मोहम्मद साहब, आपको पता है मैं क्यों स्ट्रेस कर रहा हूँ सिविल सोसाइटी का कमिटी का? बिकॉज ऑफ दिस रीजन, बट बिकॉज व्हेन यू मेक द लॉ, यू मीन्स द बाबूज मेक द लॉ, they are not the ground grass level people who are suffering over there. The grassroots people should be consulted. Consulted बोल रहा हूँ, ओपिनियन लेने को नहीं बोल रहा हूँ मैं। So there are differences. Sunil साहब, we will take up a few questions by our friends over here. Mohammed साहब, is it okay with you? Yes, sir. Okay. Friends, if anybody has any questions to our committee president, Mr. Mohammed Afzal, or to our today's invitee, Advocate Sunil ahya, sir, please go ahead, sir. Yes, Mr. Rashid, please go ahead. Sir, you are addressing the question to Mr. Mohammed or to? Yes, anybody can answer it. A very simple question. Sir, our society is required to get the license for running the lift, or is it is the responsibility of the service contractor? No, it is the responsibility of the owner, or in 100% cases we can say it is the society managing committee.
So whom do they have to apply for? They have to apply to the energy department. Every year? नो नो उनके उनके भी कुछ बेंचमार्क है कि 5 साल के लिए होता है या जो भी होता है, एंड सब्सिक्वेंटली उसको रिन्यू करना होता है, वो उनकी अगेन उनकी सोसाइटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है. Okay. Thank you, sir. Thank you very much. Yeah. ठीक है, मिस्टर अग्रवाल सर, प्लीज गो अहेड. Good evening, sir. गुड इवनिंग सर, बोलिए सर. Sir, this energy department, I'm basically from Pune. So where Yes, sir. do I have to approach? Because being a managing committee member, now the onus is coming on managing committee, so I'm little bit bothered about it. So where do I have to approach, Afzal bhai? Any guidance? यस यस, देखिए जैसे कि बॉम्बे पुणे बॉम्बे नवी मुंबई एंड पुणे जो था वो था अंधेरी में, बॉम्बे अंधेरी के एरिया में उनका ऑफिस था, और द रेस्ट ऑफ महाराष्ट्र वो चेंबूर ऑफिस था. अभी Andheri उन्होंने exactly where is it? नहीं, मैं आप जस्ट बेयर विथ मी. अभी क्या हो गया है कि इन्होंने क्या किया है, टोटल एमेलगेमेट करके इन्होंने चेंबूर जो ऑफिस है वहीं पे इन्होंने सारे चीजों को कंसोलिडेट किया है. जैसे कि फर्स्ट फ्लोर पे जो उनका ऑफिस है, इट केटर्स टू मेरे ख्याल से मुंबई, नवी मुंबई एंड पुणे, ठीक है. और जो थर्ड फ्लोर का जो उनका ऑफिस है वो है वहां पे दे लुक आफ्टर द रेस्ट ऑफ महाराष्ट्र. तो अगर आपको अप्रोच करना है तो उसका उनका एड्रेस आप गूगल कर सकते हैं, IENL डिपार्टमेंट, इंडस्ट्री, एक मिनट, IENL इंडस्ट्री एनर्जी एंड लेबर डिपार्टमेंट, इट इज एट चेंबूर. तो आपको वहां का एड्रेस मिल जाएगा, और यू कैन, अगर कोई भी आपको ग्रीवेंस है तो या तो आप पर्सनली वहां पे जा भी सकते हैं, या आप वहां पे उनके ईमेल आईडी पे आप उनको लिख भी सकते हैं, लेटर भी लिख सकते हैं, कंप्लेन भी फाइल कर सकते हैं, एंड आफ्टर 15 days यू कैन फॉलो इट अप विद द RTI एप्लीकेशन कि आपके कंप्लेन के ऊपर क्या उन्होंने एक्शन लिया है. Thanks a lot. Mr. Subhash Kalkiri. Mr. Subhash Kalkiri, if you are there, please ask your question. Mr. Subhash. Okay. Mr. Krutik Shah, please. Mr. Krutik Shah. Okay. Mr. Krutik Shah, are you there? ठीक है. Mr. Naimish, please go ahead with your question. Yeah, thank you. सर मेरा क्वेश्चन है, एक इंक्वायरी भी है कि सुनना है. मैं मुंबई से हूँ, गोरेगांव से. मुझे ये पूछना था कि ये जो लाइसेंस होता है लिफ्ट का, वो लिफ्ट का लाइसेंस बेसिकली तो बिल्डर जब ये बिल्डिंग हमें अलॉट कर देता है सोसाइटी को, तो वो लाइसेंस तो उसने ही निकाला होना चाहिए, राइट है? देखिए कैसा है कि जब बिल्डर BMC से परमिशन लेके और वो लिफ्ट को इरेक्ट करता है, तो इनिशियली वो क्या करता है, वो लाइसेंस के लिए अप्लाई करता है. एनर्जी डिपार्टमेंट वहाँ पे साइट पे आके इंस्पेक्शन करती है, सर्टिफाई करती है, और एक दफ़ा सर्टिफिकेशन हो जाता है, उसके पश्चात बिल्डर का रोल वहाँ से ख़त्म हो जाता है, और it comes on the onus comes on the managing committee to maintain the lift on a daily basis, and the managing committee is responsible for that. मोहम्मद साहब, आपको मैं एक चीज और भी बता दूं, मुझे अभी ध्यान में आया. आपने जैसे बताया था कि भाई आप ओसी नहीं इनका, तो उसको लिफ्ट कैसे इंस्टॉल करने को अलाउ कर देते हैं. तो आई सजेस्टेड कि भाई एक पैरामीटर होना चाहिए कि लिफ्ट का इंस्टॉलेशन तब तक नहीं होना चाहिए जब तक डिपार्टमेंट को प्रॉपर ओसी ना दिया जाए. अब अगर वैसा हम बात करते हैं तो आज के दिन में जितनी भी बिल्डिंगें हैं, अगर इलीगल भी है, टोटली ही इलीगल है, कुछ भी नहीं है वहां पे, लोग खड़ा कर लेते हैं 4-4, 8-8, 10-10 माले की बिल्डिंग इलीगल खड़ा कर लेते हैं. तो डिपार्टमेंट बगैर सोचे समझे उसको लाइसेंस की
और कई सर केसेस में डुप्लीकेट लिफ्ट का चलता है। जी देखिए इन अदर वर्ड्स, जैसे इफ द बिल्डिंग इज लीगल और इलीगल, still you are getting a lift license. हेमंत जी एक्चुअली देखिए प्रॉब्लम यहीं पे आ रहा है। जब से रेरा आया है तब से इट हैज बीन मेड मैंडेटरी कि दे शुड गेट द ओसी बिफोर गिविंग पोजेशन। ठीक है, मगर इतने सालों से जो बिल्डिंग जिनके पास ओसी नहीं है, और ये मैं इसलिए आपसे कह रहा हूँ कि ये एक पर्सनल मेरा एक्सपीरियंस रहा है कि जहां पर भी मेरी बिल्डिंग थी जो 7 माले की थी, ओसी है 6 माले तक का, बट द लिफ्ट इज वर्किंग फॉर 7th फ्लोर। तो उस सिचुएशन में जो कॉन्ट्रैक्टर है उसने सोसाइटी को गारंटी दिया कि भाई आप इतने पैसे ब्राइब दे दो, मैं आपको मैं लाइसेंस ला के देता हूँ, और वो लिफ्ट आज भी चल रही है। तो कहने का मतलब ये है कि 80-90% बॉम्बे में जो लिफ्ट इलीगली चल रही है, जिसके पास ओसी नहीं है, उसको रेगुलेट करने के लिए there has to be some provision that needs to be incorporated in the lift act, जो क्या है कि अगर कोई हादसा होता है, कोई एक्सीडेंट होता है, तो concerned people should be held criminally liable। आप समझे? जो है नहीं, अभी क्या हो गया है, एनर्जी डिपार्टमेंट का जहां तक हम बात करते हैं तो उनका कंसर्न ये है, साल में एक बार आना है ऑडिट करने के लिए। वो ऑफिस में आते अपना लिफ्ट का ऑडिट इंस्पेक्शन का फीस कलेक्ट करते हैं, और बस, और उनका काम वहां तक सीमित रहता है। वो ये नहीं देखते हैं कि बाकी की चीजें उस पे मतलब यानी कोई इंस्पेक्शन को रिपोर्ट को लेके कुछ क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। उनका काम है फीस कलेक्ट करना और जाके सो जाना। तो ऐसे सिचुएशन में हर एक आदमी जो लिफ्ट में ट्रैवल कर रहा है, ही इज रिस्किंग हिज लाइफ, एंड देयर हैज टू बी सम प्रोविजन वेयर दिस प्रॉब्लम नीड्स टू बी एड्रेस के 80% अगर ओसी नहीं है तो इसकी जवाब, अगर एक्सीडेंट होता है तो इसकी जवाबदारी किस पे निर्भर है। इट इज अ वेरी पर्टिनेंट क्वेश्चन, और इस पे हमें हल ढूंढना है। निमेश जी आपका अनम्यूट करिए। हाँ सॉरी सर, जैसे मेरा सोसाइटी है वो उसको ओसी नहीं दिया हुआ है और लिफ्ट पुराना था, तो उन्होंने क्या किया, उसका बॉडी चेंज कर दिया, क्योंकि करप्ट सोसाइटी है मेरा। तो 1 लाख रुपए का काम करके 3 लाख रुपया दिखाने के लिए वो नॉर्मली किया, मगर रिस्क उतना है कि बार बार लिफ्ट बीच में रुक जाती। तो उसका मतलब मुझे कंप्लेंट अगर करना है तो बीएमसी में करना चाहिए या कोई किसी और? नहीं, आपको एनर्जी डिपार्टमेंट में करना चाहिए, चेंबर ऑफिस। चेंबर ऑफिस? हाँ, चेंबर ऑफिस, IENL डिपार्टमेंट, चेंबर, इंडस्ट्री लेबर यानी इंडस्ट्री एनर्जी एंड लेबर डिपार्टमेंट, चेंबर। अगर आप लिख सकते हैं तो लिख लीजिए, IENL डिपार्टमेंट। Next question is by Mr. Advocate Prakash More. Sir. More sir, please unmute yourself, sir. More sir. My suggestion or inquiry is, today I had been to 2-3 read new buildings for, I was looking for the flat purchasing. I found that the lift which is there and the people are staying or not staying, the lift inside they have put the wooden plank, and just the buttons were working. So should we consider that lift as having authorized license, or it is without license? Because if anything goes wrong, nobody is there to claim, Who is responsible for that? सर, इसमें ऐसा है कि किसी किस्म का आपको कोई भी चीज कमी पाई जाती है तो आपको सिंपली आपको IENL डिपार्टमेंट जो है, जो लिफ्ट इंस्पेक्शन को देखता है, आपको कंप्लेन फाइल करना है, और कंप्लेन फाइल करने के बाद वो उनकी जिम्मेवारी होती है कि वो आके लिफ्ट को चेक करे, पैरामीटर्स चेक करे, लाइसेंस है नहीं है, क्या कारणों से नहीं है। तो वो सारी चीजें वो उनका दायित्व बन जाता है।
नहीं, यू आर राइट सर, आई एग्री विद यू। लेकिन क्या हम लोग अगर समझो नए बिल्डिंग में फ्लैट लेने जा रहे हैं, हाँ या कोई कस्टमर जा रहा है कोई फ्लैट देखने, जी, तो वहां पे क्या होता है कि लिफ्ट के अंदर प्लैंक लगा हुआ है, आउटसाइड में कहीं पे भी उसका एटलीस्ट एक ये होना चाहिए सर्टिफिकेट कि लिफ्ट इज ऑथराइज्ड। नहीं दैट इज देखिए, माय सजेशन टू दिस थिंग व्हाट यू वी आर डिस्कसिंग। देखिए क्या होता है कि ये मैंने भी पाया है कि जब कोई नई बिल्डिंग होती है और जिसको वो लोग प्रमोट करते हैं, वहाँ पे फ्लैट्स खाली हैं, लोग आए नहीं है रहने, तो ऐसे सिचुएशन में वो लोग क्या करते हैं, लिफ्ट के अंदर का जो केज है वहाँ पे वो लोग तीनों तीनों तरफ वो अपना प्लैंक लगा देते हैं, राइट ताकि ताकि क्या है कि लिफ्ट खराब नहीं हो। एक दफा फुल ऑक्यूपेंसी हो जाती है तो वो प्लैंक को वो लोग रिमूव कर देते हैं, और देन इट वर्क्स ऑन अ रेगुलर बेसिस। Yeah, I do agree because I had seen that in one of my relatives' place. Because the people carry the furniture and all, it should not happen. But is there any a procedure where you can the customer can go and while going to check the flats, does he have the certificate should be outside of the lift? If lift has been assigned. That is my. See, it is mandatory on the part of the lift owner There is to a developer. stick, हाँ डेवलपर हो या मैनेजिंग कमिटी हो, कि दे हैव टू compulsorily place a copy of the lift license in the lift. Yeah, that is always there. But in the new एक तो constructed building, it is not there. As you said, they put the planks and wooden. हाँ So नहीं, how but the new purchaser knows whether this lift is official or unofficial? Suppose anything goes wrong, then how will come to know whether I am going? Today I was traveling till the 14th floor. I was little bit scared that the lady was पीछे से कुछ स्विच था, वो ऑफ ऑन कर रही थी, फिर नीचे जा रहे थे, उसके नहीं अंदर जो पैसेंजर थे। ऐसे सिचुएशन वी शुड गिव देम द बेनिफिट ऑफ डाउट कि अगर उन्होंने नई बिल्डिंग बनाई है तो डेफिनेटली दे मस्ट हैव अप्रोच, दे मस्ट हैव लीगली इंस्टॉल द लिफ्ट, और दैट इज अ ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। बट नेवरदलेस लिफ्ट लाइसेंस का कॉपी उनको लिफ्ट के अंदर चिपकाना चाहिए, और कैपेसिटी ऑफ द लिफ्ट वो प्लेट होना चाहिए, और ये सारी चीजें ये इनिशियली मैंडेटरी होता है, और दे शुड अबाइड बाय इट। और अगर वो ऐसा नहीं, Sir, ऐसा once अगर all occupants are occupied, that time it is okay. But when it is a new under in the construction situation, they want to sell the flat. हाँ, They should have put it outside of the lift I because think so. inside they have put the plank on it. सब लकड़ी के ये लगा के। हाँ, I think so. We should give them the benefit of doubt कि नई बिल्डिंग है तो उन्होंने लिफ्ट लाइसेंस अप्लाई किया होगा, सर्टिफाई भी किया होगा, बिकॉज देखो क्या होता है कि इन मेनी कंडीशंस मैं हमेशा कहता हूँ कि बिफोर यू अप्रोच, जैसा कि अगर एक उदाहरण के तौर पे मैं आपको दूं, आपका एक पर्टिकुलर इशू है जो आप कंज्यूमर कोर्ट में अप्रोच करना चाह रहे हैं। अभी एक एग्जांपल है, मेरे पास एक बंदा आया, उसका इशू था 15,000 रुपए का। कोविड के टाइम पे उन्होंने प्लेन का टिकट निकाला था और वहां पे एयरपोर्ट्स बंद हो गए थे, और जब वो एयरपोर्ट वहां पे खुले तो यहाँ से तो यहाँ से अलाउ कर रहे थे फ्लाई करने के लिए, मगर जो डेस्टिनेशन था वहां पे उन्होंने रोक लगा दी थी, तो वो उसका जो टिकट जो था वो लैप्स हो गया, और उसको कंपनी मेक माई ट्रिप उनको कॉम्पेंसेट नहीं कर रही थी या रिफंड नहीं दे रही थी। तो मैंने उनसे कहा कि आपके टोटल कॉस्ट जो है जिसके ऊपर आप कंज्यूमर कोर्ट में कंप्लेन फाइल करना चाह रहे हो, कितने की है? तो उन्होंने बताया कि 15,000 है। तो मैंने बोला 15,000 के लिए आप अपना मनी, एनर्जी, टाइम वेस्ट करोगे, 3 से 5 साल तक आपको उसका नतीजा नहीं आएगा। तो आई थिंक सो इट इज नॉट एडवाइजेबल कि आप कंज्यूमर कोर्ट में अप्रोच करो। तो आपको ये खुद में एक रिसर्च करना है कि आपका एनर्जी कितना आप स्पेंड करने वाले हो फॉर अनवांटेड एंड अननेसेसरली कंप्लेन। अगर जायज कंप्लेन हो तो वेरी वेल, प्लीज गो अहेड, प्लीज।
Afzal bhai, just now you are referring that it is a mandatory to put license copy display and plate of the capacity and everything. अगर नहीं है, अगर कोई लिफ्ट में है, जैसे हमारी 12 लिफ्ट है, लेकिन हमारी कोई भी 12 लिफ्ट में ऐसा ना डिस्प्ले है, ना सर्टिफिकेशन है, ना कुछ है, तो इसका ये क्या लीगली या कानूनी? देखिए ये कैसा होता है कि द मोमेंट आप मैनेजिंग कमेटी के खिलाफ जाकर आप कंप्लेन फाइल करते तो यू बिकम द ब्लैक शीप, ठीक है। तो मेरी ये सजेशन है कि आप मैनेजिंग कमेटी को अप्रोच करिए, सोसाइटी ऑफिस को अप्रोच करिए, उनको बोलिए कि एज पर द लिफ्ट एक्ट ये मैंडेटरी है कि आपको ये चीज डिस्प्ले करना है, और अगर आप एक रिमाइंडर के बाद दूसरे रिमाइंडर के बाद अगर वो ऐसा नहीं करते हैं तो यू कैन टेल देम के बाय यू नॉट डूइंग दिस यू आर कंपेलिंग मी टू अप्रोच द कंसर्न अथॉरिटी, और फिर वहां से जो भी डायरेक्शन आएगा यू विल हैव टू फॉलो दैट। ओके, एंड वन मोर क्वेश्चन, ये जो अभी सीसीटीवी कैमरे हर लिफ्ट में लगते हैं, हाँ जी, इज इट अ मैंडेटरी पार्ट ऑफ द दिस थिंग? बिकॉज हमारे यहाँ ऑटोमेटिक लिफ्ट है सारे, हाँ जी, एवरी डे इफ सम अदर थिंग इज हैपनिंग, अ डोर गेट्स इफेक्टेड, many members have approached the secretary, but he's saying I don't want to breach any privacy. देखिए लिफ्ट इज अ पब्लिक प्लेस प्रॉपर्टी, वहाँ पे विजिटर्स भी आते हैं, वेंडर्स भी आते हैं, हर कोई वहाँ पे लिफ्ट होता है। तो आप ये इशू जो है ये सोसाइटी के कॉरिडोर्स में भी पाई गई है कि भाई लोग ऑब्जेक्ट करते कि भाई हमारी प्राइवेसी, भाई आपके दरवाजे के ऊपर वो फेस नहीं कर रहे कैमरा, दे आर फेसिंग द कैमरा ऑन द कॉरिडोर। तो आज एक आपको मालूम है पुलिस कमिश्नर ने भी एक सर्कुलर निकाला है जहां पे उन्होंने इस चीज को मैंडेटरी तय किया है कि ऑल द सोसाइटीज शुड हैव सीसीटीवी फुटेज, सीसीटीवी कैमरास इन द कॉमन एरियाज फॉर द सेफ्टी ऑफ द मेंबर्स। तो मेरे ख्याल से आई थिंक सो दे शुड नॉट ऑब्जेक्ट टू दिस। Thanks a lot, sir. Thank you. Can I ask a question, sir? Mr. Shah, please go ahead. Sir, if building does not have OC, and if some person due to accident in a lift dies, and if he has got life insurance of 1 or 2 crore, so whether he will get it because the building does not have OC. It's illegal lift. So whether he will get the life insurance if he dies. I think so. Sunil ji would be in a better position to answer this. जहाँ तक मैं समझता हूँ कि ये पर्टिकुलर चीज़ अगर ओसी नहीं है, इफ देर इज एनी सॉर्ट ऑफ इलीगैलिटी और उसके पश्चात अगर कोई भी हादसा होता है तो मेरे ख्याल से कंज्यूमर कोर्ट भी उसको एंटरटेन नहीं करती है या कोई भी कोर्ट्स उसको एंटरटेन नहीं करेगी। आई स्टैंड करेक्टेड ओवर हियर। हेमंत जी। Well, as far as answering Mr. Jayantiraj Shah, हादसा हो, अपघात हो, आदमी गुजर जाए या कुछ भी हो, उसको अपना खुद का पर्सनल लाइफ इंश्योरेंस जो किया हुआ है वो तो उसको मिलेगा। Sir, I want to talk. I am answering somebody, sir. Sir, I want to talk. Sir. That's what I said. I am answering somebody, sir. मैं और किसी से बात कर रहा हूँ ऑलरेडी। सो मिस्टर जयंतीलाल, ऐसा है कि आप रोड क्रॉस कर रहे हो, आपका लाइफ इंश्योरेंस है और कोई गाड़ी आके एक्सीडेंट करती है आपके साथ में, आपके हाथ पैर टूट जाता है या जान चली जाती है और वो ड्राइविंग जो गाड़ी चला रहा है वो आरटीओ पासिंग नहीं है, उसका इंश्योरेंस भी नहीं है, वगैरह वगैरह नहीं है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपना क्लेम नहीं कर पाओगे, आप अपनी जिंदगी का क्लेम कर पाओगे। और अगर देयर आर ऑलरेडी जजमेंट्स ऑल्सो कि थर्ड पार्टी इंश्योरेंस इलीगल ड्राइवर चला रहा है, अनलाइसेंस ड्राइवर चला रहा है, तो भी थर्ड पार्टी कायम रहेगा। थर्ड पार्टी मतलब आप, और ड्राइवर को खुद को कुछ नहीं मिलता है, पैसेंजर को मिलता है वगैरह। देयर आर सर्टेन पैरामीटर्स टू इट।
ओवरऑल कंक्लूजन इज कि आपको कुछ होता है, आपका खुद का प्राइवेट लाइफ इंश्योरेंस है, आपको कंपनसेशन पक्का ही पक्का मिलेगा. यू आर ऑल्सो एंटाइटल्ड टू डैमेजेस ऑल्सो इफ यू गो टू द अप्रोप्रिएट कोर्ट. Thank you, sir. Thank you. One last question we will take of Mr. Virenna. Mr. Virenna, please go ahead. यस सर, यू आर राइट सर, क्लेम मिल जाएगा सर, वही मैं बात करना चाहता था. Okay, thank you. Anybody else has any question? We will conclude. It is nearly 9:30. Okay. सुनील साहब, आपके तरफ से कोई concluding words? Thank you for inviting me. It was wonderful, and in fact, I also gained a lot of knowledge from Afzal and you on the subject of lifts. So I'm happy to be here. Thanks a lot, sir. Thank you. मैं समझ अब आपका concluding सेमिनार. मैं समझता हूँ कि ये सारी प्रतिक्रियाएं और जो हमने सो फार जो हमने कवर किया है, ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं एज फार एज एलिवेटर सेफ्टी इज कंसर्न. और मैं ये समझता हूँ कि अगर हम एक भी जिंदगी बचा सकें तो हमने सफलता पा गई. तो हमें उसी डेडिकेशन के साथ में हमारे पेटिशन को पुट फॉरवर्ड करना चाहिए, including all the parameters or including all the suggestions that we have received so far, so that हम देखिए, हम चाहेंगे कि हमें सब कुछ मिल जाए, हमें दुनिया की सारी चीजें मिल जाए, मगर इट इज अप टू द कोर्ट के वो हमें क्या ग्रांट करती है. बट एज ऑफ नाउ हम समझते हैं कि वी शुड कीप आवर फिंगर्स क्रॉस. हम हमारे तरफ से पूरा एफर्ट्स डालें और बाकी का भगवान पे छोड़ दें. भगवान पे नहीं छोड़ेंगे मोहम्मद साहब, वो पे छोड़ना तो वो अभी तक उन्हीं पे छुड़ा हुआ है ये सारी चीजें, और इसीलिए ये टेढ़े मेढ़े कानून बन रहे हैं. लोगों पर छोड़िए ना, लोगों पर छोड़ने के लिए क्या तकलीफ है? मेरे को ये समझाइए आप पहले. कानून लोगों के लिए बना हुआ है, ये कोई सऊदी अरेबिया तो है नहीं कि भाई एक आदमी फैसला करेगा बाकी सबके लिए. प्रजातंत्र है, आप प्रजा जो बोलेगी वो करोगे कि नहीं करोगे आप सही कह रहे हैं. द थिंग इज कि हमारे इंटेंशंस बहुत नेक हैं और हम यही चाहेंगे कि हर आदमी के सेफ्टी के लिए हम कुछ कर पाए, हम कुछ कंट्रीब्यूट कर पाए. हमारा उद्देश्य हमारा खुद का नेक उद्देश्य नहीं देखना है. मैं अगर कुछ कहूं तो मैं ये कहूंगा कि मुझे आपका इन द सेंस जुडिशरी, ड्राफ्टिंग डिपार्टमेंट वगैरह वगैरह का इरादा और नेकी सामने लेके आना. उनसे एक्सपेक्ट करना है कि आप इस चीज पे आप नेकी करो. आप अपने लिए नहीं कर रहे हो, आपके परिवार के लिए भी कर रहे हो. आप अगर एक अधिकारी हो, कोई किसी भी प्रकार के अधिकारी हो, तो आपके भी परिवार है, आपके भी एक्सटेंडेड परिवार है, उनके भी एक्सटेंडेड परिवार है. जब शादी ब्याह में जाते हो तो 100 लोग जमा होते हैं, वो सारे के 100 लोग जो है ये सारे पब्लिक यूटिलिटीज यूज करते हैं. तो यू कैन नॉट बिकम बायस्ड जस्ट बिकॉज यू आर ए ब्यूरोक्रेट, यू आर ए बाबू, और यू आर सिटिंग इन ए पर्टिकुलर चेयर और आप अपने मन मर्जी का करोगे. हियर वी नीड टू कट इट आउट. वी हैव टू मूव टुवर्ड्स दैट एस्पेक्ट. दैट इज व्हाट इज माय से कि यू आर मेकिंग द लॉ बट आई डोंट लाइक इट. I means the civil society. You are making it for me. If you are making it for me and I do not like it, then that is termed as dictatorship. You are enforcing your laws onto me. जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि पेनल्टी है up to 50,000. What is the meaning of up to 50,000? मतलब आप 1,000 रुपए ले लोगे ऑफिशियली और 40,000 रुपए ऐसे ही ले लोगे. मुझे आपको ये भी मौका नहीं देना है कि पुट इट ओवर देयर एंड स्पेसिफाइड वेरी वेरी क्लियरली. आप आरटीआई के एक्टिविस्ट हो मोहम्मद साहब, आप देख चुके हो आरटीआई में कितने लूप होल्स हैं, है ना. आप अगर 18 सेक्शन देखो कि पेनल्टी है, प्रोसिक्यूशन है वगैरह वगैरह, रेयर केसेस में हो रहा है. लेकिन आप इन्फोर्स करोगे तो डिपार्टमेंट के लोग आपको आरटीआई का जवाब टैक्स देना शुरू कर देंगे. आप इन्फोर्स नहीं कर रहे हो सर.
क्योंकि वहां पे एक्ट में तो लेकिन अब डाल दिया हुआ है, कई चीजें लिखी हैं। मैं हेमंत जी आपको बताऊं कि माई सेल्फ अलॉन्ग विथ सुनील आहिया और 8 अदर पीपल, हम जेल की हवा भी खा के आ चुके हैं फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द राइट टू इंफॉर्मेशन इन ईयर 2009. इनफैक्ट सुनील अहिया जी जो है वो आर्थर रोड जेल का जो कार्ड होता है वो अपने जेब में लेके घूमते हैं. एनीथिंग फ्रॉम यू सुनील? यू गाइस रियली रॉक्स, और आप लोगों की वजह से ही हमारी जो बची कुछ जो भी हमारी बची कुछ बिसाक जो है, आप लोगों के जैसे लोग हैं खंबे, इसलिए हमारी सिविल सोसाइटी चल रही है. Okay, I will say this now कि we will do what we want to do. We are not going to look after what the judiciary wants to do, or the law drafting department wants to do, what the adhikaris want to do. We will try that particular thing. So now on behalf of all our participant friends, we say thank you to Advocate Sunil ahya, जिन्होंने इतना समय निकाल के हमारे साथ में शेयर किया. His knowledge and experiences, he made so many things clearer for us for the benefit of all our friends, and giving us lots of inputs and ideas for our purposes. Thank you once again, Advocate Sunil ahya sir. Also, we thank our committee president, Mr. Mohd Afzal, for all his constructive efforts in the matter. Mohd Afzal साहब ने बहुत मेहनत किया हुआ है और करे जा रहे हैं और भी करेंगे. किसके लिए कर रहे हैं? He is doing it for the benefit of all the general public, which includes all these babus also and their families also. So now, with the permission of all our participant friends, we will conclude today's webinar. Thank you all for attending this knowledge sharing webinar. Wishing all friends a healthy and peaceful life forward. Thank you, everybody, and bye bye. Thank you. Thank you. Thank you very much.